So today we shall be doing miscellaneous exercise chapter 4, determinant. Question number 1. Prove that the determinant x sine theta cos theta negative sine theta negative x 1 cos theta 1 and x is independent of theta. We have to prove that to prove this is independent of theta. Okay, is independent of theta. Okay, so let's expand it along the first row. So expanding determinant along first row, along R1. So R1 के along expand करना. तो फर्स्ट एलिमेंट A11 हमने लिया x और फिर डिटर्मिनेंट आपका -x1 1x एंड देन माइनस साइन थीटा. फर्स्ट रो ले रहे हैं, ठीक है ना. माइनस साइन थीटा 1 cos थीटा and x and plus cos theta plus cos theta plus cos theta negative sin theta negative x cos theta and 1. Solving it, x and minus x into x, we take this way, minus x into x and then minus 1. So we have actually minus x square minus 1 and minus sine theta, and from here we have, again we are doing the calculation in the same way, minus x sine theta minus x sine theta, and here it is minus cos theta and plus cos theta so plus cos theta into minus sine theta into 1 minus sine theta negative sine theta and negative negative positive minus minus plus x cos theta plus x cos theta. So this is negative x cube minus x minus minus plus x sine square theta minus minus plus sine theta cos theta and minus sine theta cos theta and plus x cos square theta plus x cos square theta. Now this is negative x cube negative x plus x is common in sine square theta here,
in these two terms we have x as common. So x into sine square theta plus cos square theta. And if you carefully observe, these two terms are equal positively and negatively. They can be cancelled out. ठीक है, दोनों को कैंसिल कर दिया. Sin theta cos theta plus sin theta cos theta and negative sin theta cos theta will be cancelled out. And from here we have taken x as common factor. So x can be taken outside the bracket, and sin square theta plus cos square theta is 1. So we have actually negative x cube, negative x plus x into 1. So this x will be cancelled out because negative x and positive x will be cancelled out. So finally we have negative x cube. So we यहाँ पर थीटा है नहीं है, so we can say it is independent of theta. क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि it should be independent of theta. तो यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा has been गायब, theta has been disappeared like the horns from the ass. गधे के सिर से सिंग गायब होते हैं, वैसे गायब हो गए थीटा. ठीक है, so it is independent of theta. It is independent of theta. Question number 2. Without expanding the determinant, prove that a, b, c, a square, b square, c square, bc, ca, ab equals to 1, 1, 1, a square, b square, c square, a cube, b cube, c cube, a cube, b cube, c cube. A cube, B cube, C cube. Now, A, देखो इसमें क्या करना है हमने, A कॉमन लेना है. अच्छा, यहाँ पर कॉमन लेने से पहले क्या करना है हमने, R1 में A मल्टीप्लाई करो, R2 में B मल्टीप्लाई करो, R3 में C मल्टीप्लाई करो. Why we are doing that? If we do that, then we will have in C3 ABC, ABC and ABC. तो हम कॉमन ले सकते हैं. देखो, जब भी मैथमेटिक्स में कोई काम करे तो जो स्टेप आप कर रहे हो उस स्टेप के लिए सोचो कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो. व्हाट बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम इट. तो अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर, आपको 1 1 1 चाहिए, हाउएवर C1 में चाहिए, बट आपके पास C3 में 1 1 1 आ सकता है अगर आप ABC कॉमन ले लो, लेकिन ABC तो है नहीं, बनाना पड़ेगा आपको. सो व्हाट वी डू, we do operation like R1 में A ऐड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो A R1 and R2 equals to B R2, R3 equals to C R3, ओके. इस तरह से A R1, B R2 and C R3. नाउ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बेसिक रूल है कि हमें डिवाइड भी, मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है कि डिवाइड भी करना पड़ेगा. सो अगर हम डिटर्मिनेंट के तीनों रो में ABC मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ABC से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा. सो ABC से हमने डिवाइड कर दिया एंड दिस इज, A को A से मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर, B को B से B स्क्वायर, ठीक है, C को C से C स्क्वायर. और उसी तरीके से सेकंड कॉलम में देखो, अच्छा फर्स्ट रो में
हमने ए से मल्टीप्लाई किया है, तो ए क्यूब ए बी सी, बी क्यूब एंड ए बी सी क्यूब ए बी सी। ठीक है, नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3, taking ABC common from C3। C3 से हमने ABC कॉमन लिया, और C3 से अगर ABC कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका ABC अपॉन ABC, एंड दिस इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और यहाँ से आपने कॉमन लिया 1 1 1 रह जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो, अब हमारा लगभग सेम आ रहा है। द ओनली डिफरेंस इज कि हमारा C3 में जो है वो C1 में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इंटरचेंज रूल था, इंटरचेंज का रूल था हमारे पास कि किसी रो या कॉलम को दूसरे रो या कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है रो को कॉलम से नहीं, वो अलग रूल है। किसी दो कॉलम को या किसी दो रो को करते हैं इंटरचेंज। C1 को C3 से कर लिया और फिर C2 को C3 से। ठीक है, तो अगर दो बारी हम इंटरचेंज, एक बारी इंटरचेंज करते हैं तो -1 से मल्टीप्लाई होता है, फिर से हमने इंटरचेंज किया तो फिर से -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इस तरह से आ जाएगा हमारा। एंड सो we have finally we have 1 1 1 A square B square C square A cube B cube C cube. Okay, so this was the RHS, hence proved. We had to prove that, and finally we did it. We did that. So LHS equals to RHS, hence proved. So question 4 is likely to come in the 2022 board examinations. So mark it as important question. Question 4. If ABC are real numbers, delta equals to, a delta means determinant actually, determinant equals to B plus C, C plus A plus B, C plus A plus B, C plus A plus B, and B plus C, A plus B, B plus C, and C plus A. So that either A plus B plus C equals to 0, so that either A plus B plus C equals to 0, or A equals to B equals to C, or A equals to B equals to C. Okay, so how to do solution? See, पहले इससे पहले सिखा चुका हूं आप लोगों को कि try to do R1 plus R2 plus R3 या C1 plus C2 plus C3 and observe whether you are getting something common or not. अगर कॉमन मिल रहा है तो फिर उस ऑपरेशन को जोड़ते, ठीक है। अगर कॉमन मिल रहा है देन यू कैन डू दैट। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करने से भी 2A प्लस B प्लस C कॉमन आता है, और अगर आप R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हो तब भी आता है कॉमन। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, आपकी मर्जी। सो फर्स्ट स्टेप में पहले तो डिटरमिनेंट जो गिवन है उसको लिख लोगे आप, ठीक है।
ये लिख लिया आपने, ये आपके लिए ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, लिख लोगे, ठीक है। एंड देन ऑपरेशन यूजिंग C1 equals to C1 plus C2 plus C3, okay, C1 plus C2 plus C3। क्वेश्चन में से देखो C1 plus C2 plus C3 करने से क्या बनता है, तो ये C1 में बन जाएगा आपका 2A plus B plus C, 2A plus B plus C एंड अगेन 2A plus B plus C, ये बन जाएगा। और फिर C plus A plus B, here it is A plus B, B plus C and B plus C, C plus A। अब यहाँ से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ से 2A plus B plus C आप C1 से कॉमन ले सकते हो, और A plus B plus C आपको चाहिए भी कि A plus B plus C equals to 0, ठीक है। तो एंड दिस डिटर्मिनेंट हैज बीन गिवन एज 0, एक चीज छूट गया इसमें, ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ये 0 के इक्वल दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है, ठीक है। this determinant is given as equal to 0, okay। कॉमन ले लो 2A plus B plus C from C1, taking 2A plus B plus C from C1, common, taking common 2A plus B plus C from C1, C1 से कॉमन ले, तो C1 से कॉमन लोगे तो इधर ले लो आप 2A plus B plus C एंड इधर आपका 1 1 1 एंड देन बाकी एलिमेंट जिसमें से आप ऑपरेशन कर रहे होते हो बस उसी में चेंजेस होते हैं, बाकी में कोई चेंज नहीं होता। सो यू नीड टू राइट एज इट वाज प्रीवियसली, B plus C, C plus A plus B, ठीक है। सो 2A plus B plus C आपने कॉमन लिया, 1 1 1 आ गया C1 में। इसके बाद मैंने एक ही रूल सिखाया आप लोगों को, बेटा गेट 2 zeros, 2 जीरो कम से कम ऑप्शन करो और फिर एक्सपेंड कर दो, यही सिखाया है। तो वही काम यहाँ पर भी करना, ठीक है। तो वही काम करना है हमें, क्या करना है, R2 minus R1 कर लो, R2 में ऑपरेशन कर लो R2 minus R1 एंड R3 में R2 minus R1 सॉरी, एंड R3 में भी वही ऑपरेशन करो R3 minus R1, R3 minus R1, और इससे आपका 2 जीरो तो आराम से इधर और इधर मिल गया। लास्ट में एज इट इज रहता है क्योंकि उसमें कुछ ऑपरेशन हुआ नहीं है। ओहो, तो ये R1 में ऑपरेशन नहीं हुआ, उल्टा लिख रहा था मैं, R1 में ऑपरेशन नहीं हुआ तो बाकी तो 0 है, R1 को छोड़ करके, ठीक है। R1 को छोड़ करके बाकी 0 है, तो बाकी 0। ये आपका C plus A, ये क्वेश्चन से देख करके आप कर सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है बट क्वेश्चन से आप देखकर कॉपी कर सकते हो। A plus B एंड B plus C, सॉरी, अच्छा R1 माइनस R2 किया, R2 माइनस R1 किया आपने, R तो इधर चेंज होगा, जिसमें ऑपरेशन करते हो उसमें चेंज होगा। तो R2 माइनस R1 करोगे तो B प्लस C माइनस A माइनस B, तो B तो कैंसिल हो गया आपका, बचा क्या, C माइनस A बचेगा, A प्लस B C माइनस B। अच्छा, यहाँ पर C माइनस A बचेगा आपका एंड हेयर इट इज B माइनस C, इधर C माइनस A
और इधर बचेगा आपका सी माइनस बी। कुछ गलत हुआ है, लास्ट में आपका क्या था, सी प्लस ए में से आप प्लस ए, ये सी प्लस ए दो बार ही लिखा था, इस वजह से गलत आ रहा है, ये दोनों गलत लिखा गया था। सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, बी प्लस सी एंड हेयर इट इज सी प्लस ए। तो ए प्लस बी माइनस ए, तो बी माइनस सी आएगा, और यहाँ पर आपका सी माइनस ए आएगा, तो बी माइनस सी एंड सी माइनस ए आएगा, सी माइनस ए। ओके, हेयर इट इज बी माइनस ए आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा। और यहाँ पर आपका बी भी कैंसिल होगा, सी माइनस ए, यस सी माइनस ए इज देयर, सी प्लस ए माइनस बी, तो सी माइनस बी आएगा। अब एक्सपैंड कर दो, और इधर आपका ऑलरेडी कॉमन है, क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ठीक है। सो 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन है आपका, एंड ये एक्सपैंड कर दो, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, expanding along C1, expanding along C1, C1 के along करोगे तो सिर्फ 1 है, 1 के साथ सिर्फ ऑपरेशन करना है, तो इस वाली रो को आप ओमिट करोगे और इस वाली कॉलम को आप ओमिट करोगे, जो रह गया वही आपका माइनस है, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस बी। हो रहा है। 2a plus b plus c, and this is b minus c into c minus b, तो b minus c into c minus b करोगे आप, क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो यहाँ से, b minus c, c minus b and minus b minus a and c minus a, c minus a इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 लिखना मत बोलो, क्योंकि इक्वेशन ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है आपको, देन प्रूव करना है, ठीक है। सो दिस इज 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, एंड दिस इज bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, कुछ भी अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस bc, और यहाँ आपका माइनस, यहाँ पर आपका माइनस BC और माइनस माइनस प्लस AB, माइनस माइनस प्लस AC और माइनस A स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0 अगेन। नाउ 2a प्लस b प्लस c, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल करिए, नहीं कैंसिल हो रहा है रहने दीजिए, BC माइनस BC, okay, so it is actually minus a square minus b square minus c square plus ab plus bc plus ca, ये आया आपका, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0,
this is equals to 0. Now taking minus common outside, a plus b plus c, एंड यहाँ से आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ से आगे जो कैरी करेंगे ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फैक्टर थ्योरम में पढ़ा होगा, उसका कॉन्सेप्ट है ये। मैथमेटिक्स जो है वो जो आपने पढ़ा है वो यूज होना है, उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पर उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, इस 2 को भेज दो अंदर, ये माइनस रहने दो, a प्लस बी प्लस सी, और 2 को अंदर भेज दो, 2a स्क्वायर कोई है 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर। पाई पर ध्यान दीजिए, स्टेप्स को समझने पर ध्यान दो, रेदर देन कौन आ रहा है कौन जा रहा है, डू नॉट वॉट अबाउट दैट। माइनस प्लस बी प्लस सी, और ये जो है ना बेटे, ये एक्चुअल में क्या है, ये है, आप मौका मिले कभी 9th का एनसीईआरटी बुक में पॉलिनोमियल चैप्टर है शायद, उसमें है ये क्वेश्चन है। तो दिस इज इक्वल्स टू 0, लास्ट में क्या था हमारा, इक्वल्स टू 0 था। तो अगर ये इक्वल्स टू 0 है, दैट इम्प्लाइज ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, और a माइनस बी होली स्क्वायर प्लस b माइनस सी होली स्क्वायर प्लस c माइनस a होली स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, सो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, माइनस, तो माइनस को भेज दो उधर, -1 से डिवाइड कर दो, तो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ से देखो, स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। a माइनस बी होल स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 0 के इक्वल, ये पूरा टर्म 0 के इक्वल कब होगा, जब ये अलग अलग 0 के इक्वल है। ये जब अलग अलग 0 के इक्वल होगा तभी ये 0 हो सकता है। और ये अगर अलग अलग 0 के इक्वल है, मतलब a माइनस बी अगर 0 के इक्वल है, b माइनस सी 0 के इक्वल है, और c माइनस ए 0 के इक्वल है, तो यहाँ से आपका रिलेशन आता है a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c एंड c इक्वल्स टू a, विच इम्प्लाइज a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। यही प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव्ड, यहाँ तक करना था। ठीक है, यहीं तक करना था आपको। तो अगर ये आता है तो आप कह सकते हो कि ये 0 के इक्वल है, या a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ओके, हेंस